Today we are going to discuss about the what we have to find out the obtain the positions of center of mass of a thin rod of uniform density. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? थिन रॉड है, उसका हमें सेंटर ऑफ मास कंसीडरेशन करना है, उसका मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। विथ यहाँ पे मेंशन क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी। Okay, so regarding about the uniform density, as we know that lambda is equal to m divided by l. याद रखना है ये इक्वेशंस क्या? Lambda is equal to m divided by l. That means what? M that means what? Mass of rod and whole divided by l that means what? Total length of rod. ठीक है, so ये इक्वेशंस हमें ध्यान में रखना है। चलो regarding about what rod की बात करेंगे तो using this figure configuration, suppose this is our rod, okay, and we have to assume that हमारा जो center of the mass है which is at the origin, यहाँ पे हम O लिख लेते हैं as a reference, this is our origin and which is along the हमारा जो for simplification हम क्या considerations करते हैं? x axis पे consideration कर लेते हैं। Alright, ये origin considerations करना है। This is our what? This is our thin rod. चलो, now ये thin rod पे we have to assume small element. ये small element का mass है suppose dm है, ठीक है? चलो, so from this x-axis which is at the positive x directions, okay, यहाँ से 0 है. For this distance we are considering as a plus x. Similarly, another side of this rod which is having something element, okay, उसका मास भी हम कंसीडरेशन करते हैं dm, but position is what? यहाँ पे minus x कंसीडरेशन करते हैं। Alright, ये small dm है तो based on that ये क्या हो जाएगा हमारा dx, similarly ये भी हमारा dx हो जाएगा, ठीक है। चलो, now as we discussed in the previous video, we have to find out what x axis के लिए है, that means हमारे equations x axis के लिए हमें लिखना रहेगा, which is equal to x is equal to 1 divided by m integration of x into dm. क्या in previous video we already derived the three equations, x के लिए लिखा था, y के लिए लिखा था, as well as z के लिए लिखा था, but यहाँ पे we are only considering which axis? x axis, so that means what? We only have to consider x, ठीक है। and that means what? and that means what? mass of this rod. Alright, now we have to think about this dm. चलो, so dm के लिए हम क्या लिख सकते हैं? using these equations, as we know that lambda is equal to m divided by l, so therefore capital N का equations क्या हो जाएगा? mass of this whole rod, that will be is equal to what? multiplication हो जाएगा, that means lambda into m, okay। चलो, now यहाँ पे हमारा small dm के बारे में हमें सोचना है, ये dm की वैल्यू पुट आउट करें, तो कैपिटल N की जगह पे हम तो स्मॉलर एलिमेंट है, that's why हम क्या लिख सकते हैं? small dm डेंसिटी जो है which is called as what? linear density भी हम बोल सकते हैं, otherwise we are considering what? uniform density considerations क्या है? into l, l की जगह पे क्या है हमारा? dx है, so therefore हमें क्या लिखना है? dx लिखना है, okay, that means what? ये dm की जगह पे हमें ये वैल्यू लिखनी है, कौन सी? lambda into dx put over dm, so therefore what will be happen? 1 divided by m as it is, integration as it is, x as it is, dm की जगह पे क्या लिखना है? lambda into dx, okay। and regarding about the limit, integrations में लिमिट कितनी है? हमारा रॉड कितना है which is having length कितनी है? l है, so 0 to l हमें लिखना रहेगा, ठीक है। चलो, so now अभी इसका हमें सिंप्लीफिकेशंस करना है, that means x is equal to what? 1 divided by n, ये जो लैम्बडा है वो बाहर निकल जाएगा, so therefore इधर हम लैम्बडा लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l, क्या आ जाएगा? 0 to l x into dx, ये तो बाहर निकल जाए, therefore what? x into dx, ठीक है ना। इसकी पावर नहीं है, that means what? 1 होती है, राइट। चलो, so अभी हमें करना क्या रहेगा? लैम्बडा, लैम्बडा के बारे में हमें पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? m डिवाइड बाय l, so यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M डिवाइड बाय l, किसकी जगह पे लिखा? लैम्बडा की जगह पे, एंड एज वेल एज ऑलरेडी कैपिटल M तो है ही, ओके, एंड यहाँ पे 0 to l x raised to 1 into dx, ऑलराइट। सो ये mm तो कैंसिल आउट हो चुका है। चलो, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है? इंटीग्रेशंस करना है, एंड एज वी नो द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस,
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n into dx होता है, तो उसका क्या हो जाता है x रेज टू n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1। ओके, सो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 plus 1। सो सिंपल हम लिखे तो यहाँ पर m कैंसिल आउट, देयरफॉर व्हाट 1 डिवाइड बाय, नाउ इंटीग्रेशन करना है हमें, किसका करना है x का करना है, एंड पावर कितनी है 1, दैट मींस 1 plus 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर में भी n plus 1 है, तो जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर में लिखना रहेगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट, वो इंटीग्रेशन का हमारा कांसेप्ट है, ठीक है। एंड लिमिट क्या है, इधर हायर लिमिट l है, यहां पे लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू गिव द लिमिट्स, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस व्हाट 1 डिवाइड बाय l। x की जगह पे हमें क्या लिख देना है, वी हैव टू रिप्लेस दैट वैल्यू, दैट मींस l लिखना है, दैट मींस व्हाट l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो, सो 1 डिवाइड बाय l इनटू l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 0 होता है एक्चुअली, ओके। सो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। चलो, सो इधर l है, इधर l स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर है नीचे, तो ये 1 1 l कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस व्हाट l डिवाइड बाय 2। सो ये हमारा फॉर दिस रॉड, हमारा जो थिन रॉड है व्हिच इज हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी तो l डिवाइड बाय 2 आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मेरा रॉड है, क्या ये मानकर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं व्हिच इज अवर रॉड, वो 10 सेंटीमीटर का है, क्या 10 सेंटीमीटर का है, तो उसका cm कितना होगा, उसका cm कितना होगा, सेंटर ऑफ मास 10 है तो उसका आधा कर दो, दैट मींस l डिवाइड बाय 2 कर लो। मैंने क्या एज्यूम किया 10 एज्यूम किया, सो उसका cm कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास होगा, दैट मींस ये मार्कर का 10 सेंटीमीटर होगा तो 5 cm उसका हो जाएगा, ठीक है।